तुम्हारा डायरेक्टर है यार ये। माइक है प्लीज। ओके। Exactly. So it was just to create an intrigue. It was to create an intrigue. Okay, lovely. Now, okay. Hello, everybody, and thank. So the idea of the teaser was to create curiosity, and I think we've been reasonably successful in doing that. And I think I don't want to reveal more about exactly why everything is going in reverse. I think that let the film say that, but. नहीं, पर कुछ ज्यादा ही आप लोग सक्सेसफुल हो गए क्योंकि रेडियो फीवर 104 एफएम मैंने कम से कम 4 या 6 बार उसको बात किया उस बारे में कि ऐसा क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है। तो सब ने कहा कि इसमें सस्पेंस हो सकता है, कई लोगों ने कहा थ्रिल हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये दो हीरोइनें नजर आ रही। देखिए राजीव अपने मोहल्ले का एंड गौहर को कौन नहीं जानता है। दो हीरोइनें ये कहां से लेके आए आप? ये यही कहीं थी, मुझे थोड़ी देर से मिली है। ऐसा ऐसा एक का नाम है जेमा एटकिंसन। ओके। एंड I was let me tell you briefly about how the film happened and all that, a little very briefly for everyone to know. Well, like going from the teaser, and जो teaser की बात करें अनुराग, जो आप लोग का question कि why everything going in reverse. So going back that Fever was conceived when I was very young, about 7-8 years old. Ian Flemings and Alfred Hitchcock. And that's what Fever is all about, and it's all about childhood fantasies coming true of how we are fascinated with James Bond and Hitchcockian suspense and stuff like that. And Bond, I think, is incomplete without hot women. It kind of the romanticizing of how do you are involved with hot. Gemma is when I kind of looked at her work, and she's done a few Hollywood films and films in Europe. She embodies hotness, if I can say that, and people who have kind of seen her would agree with that. And to add to the fact that I'm a big fan of football, and she is Ronaldo's ex-girlfriend, so that is how I started knowing about her. Yo, I think जलन थी आपको रोनाल्डो से। सिंपल क्यों नहीं बोलते यार, खत्म करो ना। Okay. Yeah. Okay, and then I think the film would have been incomplete with actually a Bond girl in the film. Is a character when a spy, the ultimate romance is to romance a Bond girl. There cannot be a bigger romance for a spy or an assassin. And that's when I kind of started searching for somebody who can really play that and embody that. And then I found Katrina, and I wrote to her, and I sent her the script, and she was gracious enough to accept it and be a part of it. And during the making of the film, I actually became I lived the life that I'm trying to portray on screen. I went to Monte Carlo, which is a quintessential Bond location. All films of Bond have Monte Carlo. So I went to Monte Carlo, and I met Katrina there, and she was very excited, and she came on board. So the film was complete, that here is an assassin who is romancing a Bond girl. It kind of completes the genre for me. Okay, I think आपके पास कुछ इनके बारे में मैसेज है। So since they are shooting, both are shooting in Europe. So let them say something about the film and about us, and that would be, I think, very good. Can we have the AV, right? जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों को प्रमोट करने वाले आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। लोग चाकू छुरी तलवार लेके घूम रहे हैं, है ना, मार्केट में। लेकिन आप लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे पहले पूछना चाहूंगा, फीवर। वेल, मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ, एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे हैव फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है। परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म। एंड ऐसे मौके पे आई फील मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। और आई एम हैप्पी कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं इधर। Thank you very much. It's wonderful to have you people out here, and we just hope that the message of this film, in terms of how good it is and entertaining it, just reaches to a larger audience. So thank you very much, everyone. Thank you. Sohail.
मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल तो अगर आपको प्रमोट करना है तो there is nothing better than having friends for you. And we are so glad because as Bhai said that एक हमारी जो journey है that we've grown up with friends and we all make films. I was very surprised that a production like this, when I was watching, have gone and shot the film in Switzerland and Zurich, have got an international star cast. It's it's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta, sorry, and Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. And from that time, I thought he was an extremely competent actor. He's an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. It's a film that a team has put together. They've worked very hard. I've been through the journey of this film. So I know that to make this kind of film, to come out of this kind of film, and to have, and you know what surprises me? I didn't realize my repeat aapki taraf thi, but I'm so glad that how we as friends have been here. You as the media have come to support a film like this because एक आपका support है और एक पराज अंकल का support है. अगर पराज अंकल का support है तो you can get attention. या फिर अगर आपका support है you can get a lot of media attention. मैंने इसीलिए कहा ना तलवार कैंची लेके सब खड़े हुए हैं आजकल. So I'm really glad that for a film like this, all you boys are here, girls and boys, sorry, all you guys here to support the film because media के through ही awareness होती है. And I have to, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता लेकिन during this journey, I had gone to visit Ajay to his office. मैं ऐसे ही बैठा था and he was watching the rushes. So I started watching the film. थोड़ा बहुत मैंने देखा फिर ऐसे थोड़ा और दिखा दे थोड़ा बहुत मैंने very interesting. It's got a unique screenplay. It's a thriller और हर चीज में अगर कोई थ्रिल होती है जैसे कि अगर एक लव स्टोरी में एक थ्रिल होती है I think कुछ होता है thrilling love stories क्योंकि first Rani dies and then you've got 7 letters, then Kajol comes back into his life. So every film which has a thrilling moment, it can be a love story, it can be a murder mystery, it can be a social film, I think keeps the intrigue of the audience. And this film has managed to do that. So I wish them all the best and I hope that this film reaches a vaster audience thanks to the media and appreciate all you guys being here. Thank you. अजय जी शुरू करें प्रोमो दिखाएं सबको पहले बात तो अजय को बुलाते जो मेन आदमी जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए अजय कम एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अजय के लिए That's Mr. Ajay. He's the producer of the film and the man behind Fever. Ajay would like to say something. I would like all of you of my associates also, people who have supported for this movie. Mr. Manjunath, please come. Karanji. Please come. Ravi ji. Congrats, yeah, the team is looking very nice. And जो मैंने film देखी है, it's on that mold, it's on that flavor. So, best. I think that this film's got all the elements that you require for a successful commercial film. I think the main person for you guys for Q&A. Ajay, come. Let's just get a team up so we can take it forward. Rajiv Zaveri. I guess all yours now. Thank you so much. Thanks. Thank you.
I think let me first get my hero and my heroine on the stage who kind of made it come alive, and so can Rajiv Khandelwal please come here? जोरदार तालियों के लिए राजीव खंडेलवाल And गौहर खान, where is Gauhar? प्लीज कम ऑन द स्टेज जोरदार तालियों के साथ। जावेद साहब कैसा लगा ओवरऑल प्लीज? ट्रेलर आ रहा जैसे अरबाज एंड सोहेल ने कहा, इट्स फैंटास्टिक। और जिस तादाद में लोग आए, इट्स क्वाइट अमेजिंग। इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग फिल्म जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बड़े स्टार कास्ट, लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग है दैट दीस पीपल हैव कम। नो नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं किस द कास्ट। थैंक यू जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक आज जितने लोग यहां पर आए हैं वाकई बहुत तादाद में है। राजीव गौर, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग नजर आ रही है। तो राजीव, सबसे पहले मैं आप फीवर फिल्म का नाम क्यों यार, सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आया था, मैंने कहा फीवर क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय। जो लाइन उनकी नहीं थी, उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज सो ट्रू। बहुत बढ़िया। इट्स द एंग्स्ट विद इन। सो बेसिकली फीवर का मतलब वहां से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था, उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है। यू नो, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर। यू नो, हमारी इंडस्ट्री people like any other industry, but these two guys, I think, as far as I am concerned, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं। I think it runs in their family. From the day I entered, I did my first pilot. मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर। तब से लेकर आज तक, जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया, आई मेट सलीम अंकल, एंड आई एम लाइक आई वाज नोबडी, यू नो, फॉर देम, बट दे स्टिल मेड एन एफर्ट टू एटलीस्ट कॉल मी, and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very very kind people have I hear, and I think I can't ask for more. आपने तो रुला ही दिया था मुझे वहाँ बैठ के। So thank you so much. And yeah, so coming back to Fever, I hope you guys enjoyed the trailer. You know, a lot of effort has gone in, lot of people have been involved. बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है। आपने विजुअल देखे होंगे, इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को। जो प्रोडक्शन टीम है, जो स्पॉट बॉयज हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था। सो आई थिंक अ बिग थैंक्स एंड अ बिग कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड हियर वी आर। सो बहुत जल्दी ये फिल्म आपके सामने आ जाएगी, एंड लेट्स सी हाउ यू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल गौर, ऐसी फिल्में जो फास्ट पेस की होती हैं, जहां पे सस्पेंस होता था, थ्रिलर, क्या है कहानी का एकदम, अगर वन लाइनर बोलूं तो क्या है ये? वन लाइनर से पहले मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, पर पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप यहाँ आए। इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज अ फिल्म लाइक दिस, जैसे सोहेल ने बताया कि it really needs all your support, so thank you so much, I appreciate it. And I see the very talented Javed Jafri also with us, ladies and gentlemen. उनके लिए जोरदार तालियां दे दीजिए, because thank you for your support, thank you for being here. And yeah, coming back to your question, एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयां नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस्ड, और सस्पेंस जहां पर आता है वहां पर काफी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफी शेड्स होते हैं। तो यस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज द राइट वर्ड फॉर फीवर, इफ आई हैव टू सम इट अप। राजीव, थ्रिल एक्स, ये क्या है? एक्स थ्रिल तो समझ में आता है, एक्सोटिक नहीं, एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती एक्साइटिंग हैं, एक्साइटिंग, और भी कुछ निकलता है, एक्स फैक्टर, और भी कुछ निकलता है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मेरे मुंह से है। अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट दीज आर द टर्म्स वी थिंक ऑफ, क्योंकि जब थ्रिल एक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर। अब वो एक्सोटिक लोकेशंस हैं, या एक्साइटमेंट है, या यू नो
जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है. एक्चुअली एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है. तो आई थिंक या दिस इज राजीव और 3 लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा. गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? That's a very good question actually, and I'm dying to say this क्योंकि जब मैंने इश्कज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहां पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं. एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहां पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे. बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहां पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एक इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, लीड बोलते हैं तो लड़कियों को जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं. मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं. मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूं, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूं. सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माय करियर, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी इनफ दैट आई हैव गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज. And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. Very good. राजीव, वो एक्स फैक्टर के आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा. 3 हीरोइन और तुम्हारा एक्स फैक्टर मैंने देख लिया जो परफॉर्म कर रहे थे उधर. देख रहे बेटा, हमने देखा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप. कैसा महसूस किया? उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ. बुखार चढ़ गया था. Yeah, totally. I mean, कमाल के हैं. I mean, the script for me, I mean, जिसके बारे में बात करो, जो इंटीमेसी है, जो इंटीमेट मोमेंट्स हम लोगों को देखे हैं, वो जबरदस्ती नहीं डाले गए हैं. पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन है. हमने पहले दिन से हमें मालूम था कि किस बारे में फिल्म है. इनफैक्ट कभी ध्यान गया ही नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं राजीव से. इसलिए नहीं कि वो लड़कियां बहुत हॉट हैं, इसलिए कि मुझे लगा ही नहीं कि इस तरह के सीक्वेंसेज हैं जो मतलब जबरदस्ती हैं या क्यों हैं यहाँ पे. I think all these sequences that you saw, is a very important part of storytelling. And yeah, Rajiv wants to add. एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं. मैंने इनको कई बार बताया नहीं था कि अभी ये वाला सीन भी है. हाँ, एक्चुअली जेमा के साथ में पहले, मतलब वो उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज द फिल्म की जो एडिट पैटर्न है वो आगे पीछे था. तो हम लोग शूट भी ऐसे कर रहे थे इसके अंदर. और एक जगह हम लोग कहीं, और जेमा से मैं पहली बार मिला था. एंड जेमा के बारे में ऑफकोर्स सब जानते थे, हम सब मालूम. पहली बार मिलने पर ही परफॉर्मेंस मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे जब राजी ने बोला कि अच्छा ये सड़क के बीच में खड़े हैं ना राजी, ना वी नीड अ इंटरेस्टिंग किस. सो आई रिमेंबर, या सो इट वाज, एंड ऑन हर पार्ट, मतलब वो जेमा, आई मीन दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल. आई थिंक ब्रिलियंट एटीट्यूड उनका होता है. एंड आई थिंक शी मेड मी कंफर्टेबल, जबकि उल्टा होना चाहिए. शी रियली मेड मी कंफर्टेबल. उसके बाद बाय द एंड ऑफ द फिल्म मैं प्रो हो गया. I think Gaur also has something interesting. Also performance की दाद देनी चाहिए कि इन्हें तीनों लड़कियों के साथ अलग परफॉर्मेंस देनी थी. So I'm sure Rajiv, you will get an award for that. कि तीनों different emotions कैसे होते हैं वो आप मूवी में देखेंगे. तो सर प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए उसको. और प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस फिल्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो लास्ट जो चेक बाकी है उसको थोड़ा सा. क्या चीज? अनुराग, मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो they push you to the corner is done very well by the press. आप तो हमें वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं. You're asking us everything possible. नहीं, पर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उनको मौका न दो ना यार, जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार. नहीं, अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा, मुझे मालूम है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा दैट द फिल्म इज एक्चुअली these moments are dominating this trailer, because फिल्म की स्टोरी इतनी कड़क है कि आप एक बार भी नहीं आपको लगेगा कि जबरदस्ती डाल. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, एंड आई होप यू आल्सो फाइंड इट इक्वली इंटरेस्टिंग. पूछना हो तो मैं पूरी रात पूछ सकता हूँ. क्वेश्चन क्या है, फीवर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई पूछना चाहें. यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा. टेलीफोनिक इंटरव्यू.
मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे। तो खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे, मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, यू नो, देयर समथिंग। और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं। तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं यू नो आई विल बी 100% इन देयर। और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूंगा, बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्मों, यू नो, आर द फिल्म्स दैट रियली एक्साइट मी। सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी। जी जी, मैं प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ। मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म्स हो। थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूंगा, बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स व्हिच रियली एक्साइट मी। आई डोंट रियली लुक एट द मीडियम। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल। हमें कोई डर नहीं है, उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए। He never kept me in suspense that way, by the way, you know. Yeah. But while shooting, I wasn't prepared for that sequence to come all of a sudden, you know, and that, I think on day one. So we knew it, and he had a certain pattern of shooting the film. So I wasn't really prepared for it then, but he never kept us under suspense. Or No, actually, add to that, and I don't want this mic. Thanks. I'd like to add to that कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी RJ, I call him RJ क्योंकि सेट पे बड़ी confusion होती थी, Rajiv, so I used to call him RJ. So RJ in the first meeting itself had told me कि देखो ये scene है exactly script से एक line ज्यादा नहीं, एक line कम नहीं, ये requirement है, क्यों requirement है, और इसके अलावा I will not be able to cast, so you have to be completely comfortable with that. And जैसे राजीव ने बताया कि फिल्म में ऐसा कोई भी एक भी आपको ऐसा सीन नजर नहीं आएगा जो जबरदस्ती हाँ इफेक्ट के लिए डाल दिया गया हो. इट मेक्स सेंस टुवर्ड्स द एंड आल्सो, राइट एट द बिगिनिंग आल्सो यू विल से अच्छा दैट इज व्हाई दिस हैपेंड. इनफैक्ट माय मॉम इज सिटिंग राइट हियर एंड जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम, यू नो फाइनली एज एन एक्टर्स यू नो करियर में वो मौका आ गया है जब शायद मुझे ये करना पड़ेगा. द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक. माय मॉम सेड हाँ अगर स्क्रिप्ट में इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म देन यू गो अहेड एंड डू इट. हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग सो आई एम गेसिंग इट्स ओके. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very, like a, you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that, why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so... you know, unself-conscious, if there's a word, or so kind of selfless when they're performing, or when that thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene, right? So it was, and similarly with Gauhar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gauhar is there, and yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just go ahead, just, you know. But she trusts the script, so she goes ahead. You know, so that's the kind of trust that you have to have in the script
and the person who's directing the film, then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. Yeah. Thank you for asking. I think, yeah, that would is a kind of a thing that comes from the trailer. No, can I say that with a lot of humbleness that this is a complete original script, and that's why I had to really work hard, because it's a difficult script to kind of comprehend and initially, but visually kind of it translates much easier. But no, it is not. It's completely original, and I had to keep that in mind because I was approaching people who are part of different Hollywood and European industry, and I don't want to cut us off. And also Switzerland. The entire film is backed by the Swiss government, the Valais, the Canton of Valais, which is entirely it was shot, and for the first time, perhaps after Yash Ji has kind of patented Switzerland, you know, for me to go again to Switzerland and get the backing from them to get the kind of was a big thing for me. So the originality was very, very important, because I cannot go to any international actor saying, look honey, this is a, you know, kind of a inspired script. So it is completely original. और दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड में गए नहीं है, ये पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की ही है, तो मतलब ये नहीं कि चलो यार 2 गाने के लिए स्विट्जरलैंड होके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी कहानी, पूरी स्टार कास्ट वहीं पर रहती है, वहीं सब है, इसलिए आई थिंक बहुत अच्छा विजुअल है. Correct. So there are characters who are Indians who live in Switzerland, with Mr. Modi, whatever kind of, you know, backing expatriates. So it is, these people live in Switzerland, and it's a story about Indians living in Switzerland. So nobody's kind of gone there to do a particular thing. छुट्टी पे चले जाता हूँ. ये बहुत छुट्टी पे जाते हैं. मुझे लगता है मेरी लाइफ सिर्फ यही नहीं है. मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उतना एंजॉय करता हूँ जितना मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ. बट 100% वर्क मेरी लाइफ में नहीं है. यू नो, कंपार्टमेंट्स इन माय लाइफ. तो मुझे लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे, और बीच में ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट्स आती हैं बीच में एक्साइट नहीं करती. कभी कभी आप काम करते हो, वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, लॉट ऑफ रीजंस, मतलब, यू नो. सो बट देन मैं सिर्फ करने के लिए काम नहीं करता हूँ. मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ, बट सिर्फ करने के लिए कुछ भी कर लो तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ. बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं जब नहीं कुछ करता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस समय गायब हो जाऊंगा, नजरों से गायब हो जाऊंगा तो क्या होगा. इट डजंट रियली बॉदर मी. जब मैं नहीं दिखता हूँ आप तो सोच लिया करेंगे कहीं ना कहीं गोवा में घूम रहा होगा, लद्दाख में घूम रहा होगा, या कहीं अब्रॉड घूम रहा होगा. कोई नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं अपने तरीके से चलता हूँ. वो ऑफ कोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं, और उन जहाँ तक पहुँच गए हैं वो, आई थिंक वो उतना ही अफोर्ड भी कर पाते होंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप दोनों को. कोई क्वेश्चन को पूछ नहीं रहा है? एनीवन? और किसी के पास कोई सब्जेक्ट, कोई बात? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो सब पूछ लेंगे. यहाँ पे सब फैमिली वाले ही हैं, और क्या, सब मीडिया वाले हैं, सब यहाँ पे. ओके राजू, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज्यादा होता है. उसके पीछे रीजन क्या होता है? और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो एग्जैक्टली अगर 3 रीजन बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक? नहीं, सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश महसूस करेंगे आप. इस तरह की, मैं भी इस बात को काफी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी. दैट वाज वन रीजन, जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था. दूसरी चीज, आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है. मुजाहिद हमारे जो डीओपी हैं, ये बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए. सो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है. एंड थर्ड थिंग, आई थिंक परफॉर्मेंसेज. सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ. आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड सो देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम कि घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ. आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड वंडरफुल. यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक यू नो ब्रिटिश लड़की हैं, और हम लोग इंडिया से हैं. बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर. आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये यू नो बाहर की एक्ट्रेस आई हुई. इट्स जस्ट वेरी सीमलेसली फॉल्स इन प्लेस. एंड सो आई थिंक ओवरऑल द पैकेज विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के. आपने अभी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफी गाने हैं फिल्म के अंदर. या जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग. टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया. एक बार उनके लिए तालियां. टोनी प्लीज खड़े हो यार. आई थिंक दैट सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल. टोनी, आई एम श्योर द सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल. दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
Three things that people will take home. One, I think they will go very heavy on emotions, क्योंकि ये फिल्म में एक काफी सारे messages हैं, लेकिन एक बहुत ही strong message, I'm sure after the climax, people will take back some kind of an emotion with them for sure. Dusra, performances, like Rajiv said, everyone's done brilliantly, and good music. The music is very, very, very good. We have a song by Arijit, right? And yeah, Sharmali. So a great soundtrack as well. Yeah. Actually, I think best of luck. Zola. किरदार के बारे में बहुत सारा नहीं बता सकती क्योंकि जैसे ये एक थ्रिलर और एक सस्पेंस फिल्म है तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये एक लव स्टोरी है और जो ये कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है।
काफी एलिमेंट्स हैं इसमें परफॉर्म करने लायक, तो क्या किरदार है वो ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, बट ये कह सकती हूँ कि एक स्ट्रांग लड़की है, अपना दिमाग जानती है, और क्या कर रही है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा. This is not my first movie. As a lead role, yeah. So how much you excited and how much you nervous feeling? नर्वस तो अभी नर्वसनेस खत्म हो चुकी है क्योंकि शूटिंग हो गई और काफी अच्छी हुई है. एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक लीड अवतार में लोग देखेंगे जहाँ पर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सिर्फ गानों का हिस्सा या सिर्फ किसी के एक फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि एक परफॉर्मेंस करने का काफ़ी स्कोप मिला है, काफ़ी एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही, बिकॉज वो राइटर भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लिखा है. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दैट इंशाल्लाह लोग जाएं और ये मूवी देखें. चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि क्यों चैलेंजिंग था वो बता दूंगी तो फिर सस्पेंस खुल जाएगा. तो चैलेंजिंग काफी था. एक आई वुड से कि आजकल थैंकफुली लड़कियों के लिए रोल्स अच्छे लिखे जा रहे हैं, ऐसे रोल्स लिखे जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा रोल मिला है करने के लिए. तो चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन होपफुली मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है, सो आई एम एक्साइटेड. एट सेम टाइम लाइक हम अगर आपके रोल की बात करें, हर रोल में बहुत प्रिपरेशन करता है जी. यस, प्रिपरेशन ऑफ कोर्स काफी थी क्योंकि इस मूवी में अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर में दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन आई हैव अ मोनरो. मेरे कैरेक्टर में एक मोनरो है जो मैंने पूरे फिल्म में पहना है. तो उसको मेंटेन करना और उसके साथ टू हैव एन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास और कोई पियर्सिंग है नहीं, और आज तक कभी भी आई थिंक बॉलीवुड में कोई एक फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसने मोनरो पहना हो एज अ कैरेक्टर. तो उसको काफ़ी हमने वर्क किया है, और जैसे मैंने कहा इस लड़की के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको निभाने में काफ़ी प्रेपरेशन. वेरी गुड. जेमा एंड कैटरीना, बोथ ऑफ देम, जैसे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें पता होता है कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती. तो हमने काफ़ी मस्ती भी की, और दोनों ही लड़कियाँ इतनी स्वीट हैं. वी गॉट लॉन्ग लाइक हाउस एंड फायर. सारे ही टीम, राजीव, मैं और दोनों लड़कियाँ एंड जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो भी. इट वॉज अ ग्रेट टीम ऑल टुगेदर. एंड हमने मोर देन 1 महीना स्विट्जरलैंड में बताया, तो द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल. वी हैड एक्सट्रीम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में हैं, कि वाह, ऐसी भी एक फिल्म शूट हो रही है जहाँ पर हम सिर्फ एक गाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि पूरी फिल्म ही हमने वहाँ शूट की है. और अगर आपके बोल्ड सीन्स की बात करें तो आपने कहा कि मैं पीछे बैठकर देख रही थी, मॉम के साथ नहीं देख रही. तो जब आपको फिल्म के लिए बुलाया गया, अप्रोच किया गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? कितना मुश्किल रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? अगर See, coming from a regular middle class family, of course, it takes a lot of preparation आपके दिमाग में कि आप करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी और क्यों करना चाहेंगी. As an actor, I have been trained enough to know कि आपको अपने inhibitions छोड़ने पड़ते हैं to perform a character. Thankfully मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट है जहाँ पर वो समझते हैं कि एक एक्टर की जिंदगी क्या होती है. और मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि हाँ, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तो शायद मुझे कर लेना चाहिए, या हाँ, ये फिल्म में है, 2 गाने हैं तो चलो बोल्ड सीन चलेगा. बट इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो थी, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई थी कि वो क्यों कर रही है उसका भी एक रीजन है. ये कैरेक्टर अगर एक गाने में एक ब्यूटीफुल किस है तो वो क्यों है उसका भी एक रीजन है. इट्स नॉट जस्ट रैंडमली हैपनिंग for any of the scenes in the film. So as an actor you have to be absolutely sure of what you're doing. नहीं, ये पहली फिल्म है जहाँ पर गौहर खान डांस नहीं कर रही है. Yeah, actually I'm not dancing in this film. नहीं, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि in this film I get to play a beautiful role. So yes, for the first time in this film I'm not dancing. अगर फिल्म में
यार बात करिए तो क्या सोचा, मतलब सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया आपको किरदार में कि हाँ यार ये फिल्म ये रोल मुझे करना चाहिए? आपको मेरे किरदार के बारे में बहुत कुछ जानना है ना, जब मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ तो क्या अट्रैक्ट किया हाँ यार ये वाला करना है मुझे। वही तो नहीं बता सकती कि क्या अट्रैक्ट किया, अगर बता दूंगी तो फिर there's no fun in it. But I can say that ये लड़की is extremely strong, जो जैसे मेरी असलियत भी है, लेकिन वो स्ट्रांग भी है, वो नाइव भी है, वो प्यार में भी है, वो क्यों है, कैसे है, वो सब आपको फिल्म में पता चलेगा। थैंक यू। मेरा कैरेक्टर फीवर फिल्म में एक असैसिन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जो एक अलग किस्म से अपनी लाइफ जीता है, और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके बाद जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है। उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी के अंदर, और तब उसका पास्ट उससे आके मिलने लगता है। कुछ लोग जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे वो आने लगते हैं। अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में किस तरह के लोग होंगे, और वो अपने आप को तलाश रहा है, लेकिन उसका पास्ट उसके साथ में कैचअप कर रहा है, और किस तरह से फिर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है एंड एक पॉइंट पर आके अनवेल होता है। तो ये इस तरह की एक थ्रिलर है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि बी सस्पेंस्ड। सस्पेंस्ड अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, बट फिर भी यूज़ किया गया। तो प्लीज़ बी सस्पेंस्ड टिल द टाइम यू डोंट सी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं, जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़रा बड़ी बात नहीं होती, कोई स्कैंडल नहीं होता। अब वो चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो हम छोटे शहर में भी चले जाएं, तो आई डोंट थिंक किसिंग बड़ी बात रहेगी। तो मुझे लगता है इस पर ज़रा चर्चा करना बनता भी नहीं, कि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं, मतलब सॉरी किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रौंची नहीं नज़र आएगा। जैसे कि मैं किसी से कह रहा था कि ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, बट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा। वो जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, जो मेरी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म में काम करता हूँ, और अगर ये माध्यम होता या ये एक जरिया होता अपनी फिल्म को बेचने का, तो अभी तक बहुत कहानियाँ सुन ली होती है आपने कि राजीव और बॉन्ड गर्ल का ये अफेयर, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये वहाँ गए और यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, राजीव और गौहर के साथ में ये हुआ। तो ऐसी कहानियाँ हमने कहीं ना तो हमने दी। मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा किसी का कोई अफेयर नहीं हुआ, इससे पहले की कहानियाँ कोई लीक करे कि अच्छा ये हुआ था। हम वो उस जरिए जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और बड़े खुश हैं कि हम आज भी साथ हैं, सबके सब सारी कास्ट एंड सारी क्रू, एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत ईजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, आप देखेंगे। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव ज़वेरी जो है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हमारी मेहनत एक तो परफॉर्मेंस लेवल पे थी, और दूसरी मेहनत हमारी थी लोकेशंस पे। हमने 3 सीजन में फिल्म शूट की है स्विट्जरलैंड में। ये पहली फिल्म है शायद जो पूरी इंडोर आउटडोर पूरी स्विट्जरलैंड में शूट हुई है, मतलब एक पैचवर्क भी यहाँ बॉम्बे में आगे नहीं किया गया। सारे गाने जितने भी हैं सब कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ है, और अलग अलग सीजन्स में रात के 1 बजे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, आपको बर्फ़ में आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने एक शर्ट पहनी थी दोपहर में, और आपका सीन 2 बजे शूट हो रहा है, तो वो एक अलग चैलेंजेस थे। जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं पहुँच सकती थी, खाना भी हम सड़क पे खाना पड़ता था। तो हम लोग सब एक शेड ढूंढते थे कि कहाँ पे थोड़ा सा इनक्लोज जगह जहाँ पे खाना खा सकें। ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था। गौहर को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस है उनको। वो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ गोल गोल घूमती हैं तो उन्हें शी फील सिक। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि वो आगे बैठ के जाती थी। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी, एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, जिसके अंदर 2 अलग अलग आप देखेंगे, मतलब तो या इट वॉजंट ईजी, बट हर एक्टर कहेगा कि मेरा परफॉर्म करना इजी नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। भाई समझ अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे। मेरी वाइफ भी 2016 की है, मतलब आज के ज़माने की लड़की है।
बहुत इवॉल्व हैं, बहुत सुलझी हुई हैं, उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती। जैसे मुझे परेशानी नहीं होती, मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ किसिंग थी। तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके खत्म कर देनी चाहिए। मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को। आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना किसिंग, तो क्या बड़ी बात है, फिल्म में कंटेंट क्या है वो बताओ। ब्रेक इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अभी सिर्फ मैं दिखता रहूँ हर वक्त, एक साल में 5 फिल्में करूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता। ये गलत भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। कुछ लोगों की, हर आदमी, हर एक्टर अपने हिसाब से सोचता है। मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसा ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ये सूट करता है कि मैं वो फिल्म करूँ जो मुझे एक्साइट करती है। तब मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, मुझे सेट जाने में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 6 महीने के बाद आप शुरू करते हो तो आपको लगता है आप न्यू कमर हो, बिल्कुल आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही आपको जानता है, तो एक अलग किस्म का पैशन भी बनता है जो मुझे सूट करता है। और मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि मैं गायब हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं गायब होता जा रहा हूँ और दिखना चाहिए मुझे। मैंने आज तक कभी कोई आप मेरे बारे में ज़रा पढ़ते भी नहीं होंगे, मैं ज़रा सोशल ऑनलाइन मीडिया में भी ज़रा एक्टिव नहीं हूँ। अब मुझे लगता है कि काम अच्छा करो तो अब ज़माना भी बदलता जा रहा है, लोग फिल्में देखने आने लगे। अभी हम पास्ट में देख चुके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, लोग पीपल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पीपल वांट कंटेंट। आई थिंक तो अगर आप काम ऑनेस्टी के साथ फिल्में करेंगे तो देर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस, और अगर फिल्म रिलीज ढंग से हो, आज की तारीख में एक्चुअली कंटेंट से भी ज़्यादा हो गया कि आपकी फिल्म रिलीज ढंग से हो, आपकी फिल्म लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कुछ फिल्में जैसे मैंने पास्ट में की थी, साउंड ट्रैक जैसे मैंने एक फिल्म की थी जो कि रिलीज़ अच्छी नहीं हुई थी, लोगों ने पर्दे पर लोग देख ही नहीं पाए थे, लेकिन आज भी उस फिल्म को 4 साल हो गए हैं, अभी भी मुझे कोई ना कोई मिलता है जो बोलता है सर मैंने कल टीवी पे देखी, मैंने डीवीडी पे देखी, बहुत अच्छी लगी। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको लोग मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि सर मैंने साउंड ट्रैक देखी, बहुत अच्छी लगी। तो कुछ फिल्में आपको रिच डिविडेंड्स देती हैं। तो मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं छुट्टी पे निकल जाता हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको एक कंपार्टमेंट मान के रखूँ कि काम मेरा एक हिस्सा है, वो मेरे ऊपर हावी जिस दिन हो गया पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँगा। मैं कंपार्टमेंट बना के रखता हूँ, एक शूटिंग खत्म, आपकी फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में आप एक नॉर्मल आम इंसान है राजीव खंडेलवाल, जिसकी कोई स्टारडम नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है, जो आम इंसान की तरह से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। ऑफकोर्स लोग जानते हैं मुझे, तो वो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए छुट्टी पर चले जाता हूँ, ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे लोग जानते ही नहीं है। लाइनों में खड़ा होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइन में खड़ा होना, चीज़ें अपने क्रम से चीज़ें लेना, कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आप रेस्टोरेंट में बैठे इसमें आपको जानता भी नहीं है। तो आई थिंक एक अलग मज़ा है उस चीज़ का। और फिर अब जब आप सिविलाइज वर्ल्ड में आ जाते हो, जब आप बॉम्बे आते हो या इंडिया में आते हो या कैसी जगह जहाँ लोग जानते हैं, एक डिफरेंट एक लाइफ होती है। तो मैं दोनों लाइफ जीना पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं बीच में देख जो आपकी ऑडियंस है टीवी की, सच का सामना हो या सुजल हो, आज भी लोग याद करते हैं कि सच का सामना कब आएगा, तो आर यू प्लानिंग टू पार्ट 2 या पार्ट 3 सच का सामना? मुझे खुशी इस बात की कि लोग मेरे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं, इतने साल हो गए उसके बावजूद भी आपको प्रोजेक्ट्स याद हैं, मेरे लिए वो एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास में जो किया है मैं उसके सहारे आगे ना बढ़ूँ, मैं तो उसे सीढ़ी बना के ना चलता रहूँ। मुझे इसीलिए मैं ब्रेक भी लेता हूँ कि भूल जाए, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए 1 साल में कि मैंने क्या किया था। लेकिन मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, काफ़ी रिलेट करते हैं, मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें दफना देता हूँ। जो मैंने पास्ट में किया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब कुछ दफना देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश नहीं करता कि कोई सीजन 2 या सीजन 3 आए, बट सच का सामना एक ऐसा शो है जिसका सीजन थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, हो सकता है मैं कर भी दूँ। बातचीत नहीं हुई है, मेरे पास में कोई नहीं आया है, ना तो प्रोडक्शन हाउस ना चैनल। सच का सामना को लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हो रहा है, बट उसके बाद अलग जो शोज़ हैं, मैं शायद अपने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, उसका कभी सीजन 2 या सीजन 3 नहीं करूँगा, बिकॉज वो देख चुके हैं, वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो बड़े आई नो बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल रहता है कि किस तरह की फिल्में मैं पसंद करता हूँ करना। मैं हमेशा अपनी आमिर होने के बाद में आमिर करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम अपनी सोच को पर लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम सोचें कि यार मुझे ना एक रोमांटिक, क्योंकि जब आमिर आई थी तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट होगी। जब टेबल नंबर 21 आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी, या शैतान जब आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। तो अब
अब बेस्ट मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूँ अपनी प्लेट, दिमाग भी अपना ब्लैंक रखता हूँ, जब क्योंकि कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर, जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसी ने सोच दिया। तो ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आपको पता भी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ऑडियंस सोचेगी, क्या जैसा हम पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे, और जब वो हो जाता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जो आप अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपने एक अटेम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल बना। राजीव, आपने जैसे अभी क्या इसी में कि अरबाज खान के साथ आपने कोई पायलट शूट किया था, वो थोड़ा क्या था बताएंगे? जब मैं मुंबई में आया था 2002 में, तब मैंने एक पायलट शूट किया था टीवी के लिए, जिसमें मैं और अरबाज एक सीज़न कर रहे थे हम लोग, मैं नाम नहीं लूँगा बट एक सीज़न कर रहे थे, जिसका भी चल भी रहा है कोई सीज़न। तो हमने एक पायलट शूट किया था, मेरे ख्याल से पहले एक्टर थे जिनके साथ में, वो उस टाइम आपको सीनियर हैं, मेरे आज भी हैं, तब भी मेरे सीनियर थे, तब हमने काम किया था। तब भी मुझे याद है कि जब 2002 में किया था उन्होंने, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल दिल्ली से आया हुआ लड़का था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया उस टाइम पे। ऑफकोर्स वो कभी शेप अप नहीं हुआ, कभी टेलीविजन पे हमने उसकी सीरीज नहीं कर पाए। तब से लेकर आज तक एक आई थिंक द होल फैमिली इज वेरी गिविंग, नॉट जस्ट टू मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक ये लोग सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छे बहुत काइंड किस्म के लोग हैं, बहुत कन्नाइविंग नहीं है, बहुत स्कीमिंग नहीं है, दिल के हैं आई थिंक। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज अरबाज और सोहेल भाई आए, जावेद जाफरी आए, दे आर ऑल लाइक क्लोज फ्रेंड्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि ट्रेलर लॉन्च है तो चलो यू नो एक्टर्स होने चाहिए, इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप सबको फिल्म पसंद आए।